Morning students. So in this video I will explain you about rate law, order of reaction and molecularity. So dependence of rate on concentration. In last video I explained you about the factor affecting rate of reaction. So in that I explained you about concentration of reactant. Reaction occur with greater speed when concentration of the reactant is high. So how concentration is depends rate is depends on concentration. So the rate of a chemical reaction at a given temperature may depend on the concentration of one or more reactants and products. The representation of rate of reaction in term of concentration of the reactant is known as rate law. Okay, so it is also called rate equation or rate expression. So now I will explain you about rate expression and rate constant. So for this, showing rate expression or rate constant, we are taking one reaction, that is AA plus BB gives CC plus DD. Okay, here this small a, small b, small c and small d are stoichiometric coefficient. Now I will show you how we will express rate for this reaction. So according to rate law, rate is inversely to the concentration of A and the concentration of B, and its stoichiometric value comes on a exponents or on a power. Okay, so where exponent x and y equal to the stoichiometric coefficient A and B of the reactant. Okay, तो ये हम पढ़ रहे हैं रेट लॉ या वेग नियम कह सकते हो आप इसे. तो वेग नियम में हमने एक रिएक्शन लिया है ए प्लस बी बी गिव्स सी सी और डी डी. इसमें जो ए सी बी सी डी हैं ये सब क्या हैं, ये हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मींस जब हम कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो जो हम आगे नंबर्स लेते हैं वही है ये. ठीक है, तो जब हम रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर हम जाएं तो रेट कहता है कि रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, और उनकी पावर जो स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, पावर में जाएगी. अब ये जो एक्स और वाई हैं ये जो हैं ये एक्सपोनेंट्स वैल्यू हैं. बेसिकली ये इनके इक्वल हो भी सकती हैं. जो ये ए बी सी डी हैं जो हम बैलेंस करने के लिए रिएक्शन के लिए जो नंबर लेंगे बैलेंस करने के लिए, उनके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मे बी और मे नॉट बी. ओके, दिस एक्स एंड वाई इज अ एक्सपोनेंट्स विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी. नाउ दिस above reaction we can also write like this. सो फॉर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनल साइन, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट यूज़ किया है जो है कैपिटल के. यही कैपिटल के कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट. के इज़ नॉन एज रेट कांस्टेंट. सो इन प्लेस ऑफ रेट वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑल्सो ऑफ रेट, दैट इज़ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टी. सो this is your rate expression, or we can say rate constant. Here k is rate constant. Okay, so we can use this rate constant also we can calculate by this formula. So basically rate law is rate is proportional to concentration of A and concentration of B and their exponents value. This exponents value x and y may be or may not be equal to these stoichiometric value A, B and C and D. Okay, so rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction. For expressing rate of reaction we are taking one example. I am taking one example. For example, the reaction is 2NO plus O2 gives 2NO2. So how we will express rate? So here is the rate. Rate is equals to K, concentration of NO की power comes 2 here, and O2 the stoichiometric coefficient of O2 is 1, so we will use here 1. Okay, so
लाइक दिस वी कैन एक्सप्रेस रेट। तो रेट को अगर एक्सप्रेस करना है तो हमने एक रिएक्शन ली है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। तो इस रिएक्शन में अगर हम रेट देखें तो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, रेट इक्वल्स टू K कंसनट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2 कहाँ से आया है, यहाँ हमने कॉफिशिएंट वैल्यू जो हमारी है, सॉरी स्टियोकेमेट्रिक कॉफिशिएंट जो हमारा है NO के लिए 2 है, तो हमने यहाँ पावर में 2 यूज़ किया है, ओके, एंड O2 का 1 है। तो इस तरीके से हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे K क्या है, रेट कांस्टेंट। वन नोट, यू विल नोट वन लाइन दैट इज रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो अगर हम किसी भी रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन की बात करें तो वो हम केवल बैलेंस रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल हैं, क्लोरोफॉर्म को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया है तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है, CHCl3 + Cl2 गिव्स CCl4 एंड HCl। तो अगर आप यहाँ पे रेट को देखो तो हमने यहाँ पे स्टियोकेमेट्रिक कॉफिशिएंट यूज़ नहीं किया है, क्लोरोफॉर्म के ऊपर 1 है, पर तो ज़रूरी नहीं कि ये जो वैल्यू हो ये इक्वल टू दैट वैल्यूज़ आए जो स्टियोकेमेट्रिक कॉफिशिएंट हमने यूज़ किए हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। कभी कभी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ये जो रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन है ये हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसे हमें एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन करना पड़ता है। तो इसलिए ये कभी सेम भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी, दैट्स वाई आई टोल्ड यू मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टियोकेमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके। सो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच स्टियोकेमेट्रिक कोफिशिएंट एंड पावर आर नॉट सेम, this is CH3COO(C2H5) plus H2O. When react we get CH3COOH plus C2H5OH. So in this reaction also H2O, for this reaction concentration of H2O is not affecting rate of reaction, ठीक है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको H2O का कंसनट्रेशन अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसे हम चाहे कम लें या ज़्यादा लें उससे रिएक्शन के रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसकी पावर में क्या आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के रेट को इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, उसकी पावर के साथ, ठीक है। रेट कांस्टेंट और वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा आपका, रेट के इक्वल हो जाएगा जब क्या हो, हमने रिएक्टेंट क्या लिए हैं, इनका कंसंट्रेशन जो ऑल द रिएक्टेंट हमने लिए हैं अगर उनका कंसंट्रेशन 1 मोल लिया है, मीन्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज यूनिटी देन रेट इज इक्वल्स टू K. सो K इज द रेट कांस्टेंट, it is the rate of chemical reaction when concentration of each reactant is unity. The rate constant is also called specific reaction rate, okay. So this is rate constant which denoted by K. We move to next topic, that is order of chemical reaction. अभिक्रिया की कोटि के बारे में हम समझेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमने एक रिएक्शन लिया है। लेट कंसीडर वन रिएक्शन AA + BB गिव्स CE + DD। तो अभी मैंने आपको रेट लॉ में एक्सप्रेस करना सिखाया था कि हम रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हम यहाँ भी उसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, कंसनट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X, कंसनट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y. So sum of x and y, what I am saying, sum of x and y is known as order of reaction. जो अभिक्रिया की कोटि जो है वो जो ये वैल्यूज़ हैं कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है, इनकी पावर को जब हम प्लस कर देते हैं, इनकी घात को जब हम प्लस कर देते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो है अभिक्रिया की कोटि। सो x + y इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Definition for order of reaction is the sum of the power of the concentration of the reactant in the rate law expression is called the order of chemical reaction. Order of reaction can be 0, 1, 2, 3 and even a fraction also. A zero order reaction means that the rate of reaction independent of the concentration of the reactant. अगर हम जो rate of reaction यानी अभिक्रिया की कोटि की बात करें, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन यानी अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग के बराबर होती है। जो इनकी घात है इनमें जो योग है
इनका जब हम ऐड करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारे अभिक्रिया की कोटि होगा। तो अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और भिन्नात्मक मान भी इसका हो सकता है, यानी 1/2, 1/3। तो 0 ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, मतलब जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब जिनकी घात को प्लस करके 0 अगर आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिनमें जो अभिक्रिया का वेग है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। A balanced chemical equation does not give a true picture of how a reaction take place. It is very rare that reaction gets completed in one step. तो हमें पता है कि रिएक्शन जरूरी नहीं एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, वो अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हम एक स्टेप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि हम कोई रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो जो भी उसकी पावर आगे वैल्यू है उसे हम प्लस करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने ये रेट लॉ में भी पढ़ा था कि जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है ये थ्योरेटिकली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी पड़ती है। तो इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। इसकी वैल्यू मे और मे नॉट भी सेम हो सकती है इन स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूओं के योग के बराबर। ठीक है। तो टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हम रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर अ सिंपल जनरल केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन एंड रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई। सो वेयर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड in this video we are discussing about the unit of rate of constant. So we will see how we will find the unit of rate constant. So K is equals to rate upon concentration of A raised to power x concentration of B raised to power y. So when we put the unit or we will apply the unit of rate and unit of concentrations, so we can find द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसमें हम वेग स्थिरांक के मात्रक को पता लगा रहे हैं। तो मात्रक जो होता है वेग का वेग स्थिरांक का मात्रक जो है वो वेग के मात्रक और जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं के मात्रक से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो इसमें एक्स और वाई इनकी वैल्यू का भी पता होना जरूरी होता है। सपोज अगर x की वैल्यू 2 होगी तो जो भी हम मात्रक यूज़ अभिक्रिया के सांद्रता का अभिकारक के सांद्रता का जो मात्रक यूज़ करेंगे यानी कि जो रिएक्टेंट का यूनिट यूज़ करेंगे मोल पर लीटर वो स्क्वायर में हो जाएगी। अगर 1 होगी तो वो एज इट इज़ रहेगी। तो हमें इन x और y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो हम x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट निकालेंगे। तो सपोज हम 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकाले हैं तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ये पावर हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेस्ट पावर 0 एंड B रेस्ट पावर 0। और जिसकी किसी भी की वैल्यू की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इट मीन्स दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट। इसका मतलब क्या है कि वेग स्थिरांक किस पे डिपेंड करेगा, ओनली रेट पे डिपेंड करेगा। सो K इक्वल्स टू रेट और हम रेट का मात्रक यूज़ करेंगे, यूनिट यूज़ करेंगे जो होता है मोल लीटर -1 सेकेंड -1। इसका मतलब है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए K रेट कांस्टेंट का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर -1 सेकेंड -1। इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल्स टू rate upon concentration of A raised to power 1. So when we apply the unit of both, so we can find that K is equals to mole liter -1 second -1 upon mole liter -1 raised to power 1. Okay. So rate constant की जो मात्रक आएगा वो for first order reaction I am saying फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू का मात्रक आएगा वो हम रेट का मात्रक मोल लीटर -1 सेकेंड -1 और मोल लीटर -1 रेस्ट पावर 1 यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर -1 से लीटर -1 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो व्हाट वी गेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू सेकेंड -1। तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, सेकेंड -1। इस तरीके से आप फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
So for second order reaction, rate constant is equals to mole liter minus 1 second minus 1 upon mole liter minus 1 square, right? बिकॉज अब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, सेकंड हो गई। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, यानी कि पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2। अब इनकी अगर हम मात्रक यूज़ करेंगे तो मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 अपॉन मोल लीटर माइनस 1 स्क्वायर, यानी हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक मोल लीटर माइनस 1 कट हो जाएगा, एक बचेगा, मोल नीचे है ऊपर जाएगा तो मोल रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। लीटर ऑलरेडी माइनस 1 था, तो पावर जब ऊपर जाती है, मतलब उनकी जो साइड है चेंज होती है, अगर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में अगर पावर है तो प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि जो रेट कांस्टेंट है उसका जो मात्रक है वो क्या बन जाएगा, मोल माइनस 1 लीटर सेकेंड माइनस 1। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो मात्रक होगा वेग स्थिरांक का वो हो जाएगा मोल माइनस 1 लीटर सेकेंड माइनस 1। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का मात्रक निकाल सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो आप पावर में 3 लिखेंगे रिएक्टेंट के, यानी मोल लीटर माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगी, इस तरह 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। तो अगर अभिक्रिया की आणविकता की बात करें तो अभिक्रिया की आणविकता होती है कि कोई भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर को हम बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखो तो उसमें NH4 NO2 की रिएक्शन की तो N2 और 2H2 बना, तो हमने यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट दिया है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम दूसरा देखें 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो यहाँ हमने HI के 2 मोल लिए हैं, मीन्स 2 वैल्यू ली है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगी इस रिएक्शन की वो 2 हो जाएगी। तो दिस इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता किस पे डिपेंड करती है कि कितने हमने रिएक्टेंट लिए हैं उस पर।